Welcome back, dear students. Now we will study the chapter related to V3 lessons. एक और चैप्टर मैं आज डिस्कस कर रही हूँ. Already we have discussed V3 lessons in last term, but on last days we have discussed some V3 lessons, but some lessons which were left today I'll discuss with you. Okay, so in V3 category we have could have, should have, must have, ought to have, would have, might have and will have, है ना. These are the chapters and two chapters were discussed. Now the third one is must have, है ना. आपको थोड़ा सा पहले से और इंट्रोड्यूस कर देती हूँ that the speaking course in which we are studying the lesson according to the verb, है ना, in V0, V1, V2, V3 and VING lessons. Some of the VING lessons, most of the VING lessons were discussed already. This is avoid plus VING, feel like, start, keep on, can't help, insist on, stop, love, mind, used to and might be. These are the lessons, and these almost chapters we have already discussed. Now we have come in the V3 category. In V3 category we are having chapters could have, should have, must have, ought to have, would have, might have and will have. Right? So today we are discussing the third one lesson, that is must have. Okay, so must have जरूर चाहिए था, है ना. Children, students were generally confused in they ask the question where I have to use must, where I have to use should or where I have to use ought to, है ना, which I have already discussed, but one more time I will try to explain you. Should we use for the general duty, है ना. In the same way should have we use in the past and for the general duties which we were generally doing, and must have is for the compulsory duty and ought to have which we use for the duties which is related to morality, moral duties, है ना. It is actually related to moral duties. Okay, so must have means जरूर चाहिए था. इसकी हिंदी आइडेंटिटी will be जरूर चाहिए था, है ना. और स्ट्रक्चर आपको पता है. फर्स्ट आई डिस्कस विद यू स्ट्रक्चर्स: पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटरी पॉजिटिव इंटरोगेटिव, then confirmatory negative interrogative, comprehensive positive, comprehensive negative and conjunction positive. And one more category I have introduced which is related to conjunction, that I will explain you today. Okay, so subject plus must have plus V3 plus object. You see there are two helping verbs. This is a pair of verbs, है ना. So always keep this thing in your mind that whenever you are using the couple verb, that means the two verbs, two helping verbs are there, pair verbs are there, pair helping verbs are there, then the must or whatever you use when you are making the negative sentence, not will be there, है ना. Not only this chapter, all the chapters where you are using couple of verbs, दो helping verbs अगर आप use करते हैं तो हमेशा बीच में ही not लगाएंगे. And whenever you are using the making the confirmatory structure, subject will be in between, है ना. When you are using confirmatory negative, then subject and not in between, है ना. ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि whenever you are making the structures in Hindi or English, especially in English, the arrangement of the words should be very clear, है ना. Then only you can make the correct sentence. Okay, so positive subject plus must have plus V3 plus object. Negative will be subject must not have plus V3 plus object, है ना. कंफर्मेटरी लेंगे, डिस्कस करेंगे. यू नो द कंफर्मेटरी स्ट्रक्चर विच ऑलवेज स्टार्ट्स बाय क्या, है ना. क्या से हम शुरू करते हैं तो मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव. देखिए मस्ट हैव, इन बिटवीन मस्ट हैव वी आर यूजिंग सब्जेक्ट, है ना. ये ध्यान में रखेंगे. मस्ट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज कंफर्मेटरी पॉजिटिव स्ट्रक्चर, राइट. कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है ना. इसका नेगेटिव देखिए, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट and question mark. Children generally forget the punctuation, like first letter should be capital and there should be a question mark at the last, है ना. These middle four structures are related to interrogative category, so we have to use question mark there, right.
तो दिस इज confirmatory negative interrogative. Now we'll discuss the comprehensive structure. Comprehension means समझ. In this section we make the question related to comprehension, जिसमें आपको समझ के जवाब देना पड़ता है. And we have 9 members of WH family which are being used to make the confirmatory interrogatives, comprehensive interrogatives. And these are what, where, when, which, who, whom, how and why. Okay, so these are 9 members. WH plus must. Always keep this thing in your mind that whenever you are using WH member, there should always be helping verb, है ना. जिसका भी आप स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो यहाँ आना चाहिए ना. तो WH plus must plus subject. See, subject is there, then have, then V3 and object ना. Comprehensive positive interrogative, right? And we'll make the negative of this one. WH family member means any member can become what, where, when, which, who, whom, how and why, है ना. These are the 9 members, so we can make only 9 comprehensive question out of this WH plus helping verb, है ना. ध्यान रखें, केवल WH member अकेला नहीं आ सकता, आपको helping verb का भी यूज करना पड़ेगा ना. तो WH plus must plus subject plus not plus have, V3 or object, है ना. This is comprehensive negative interrogative structure for you. And now the next, which is new today, and I'm introducing this one. This is conjunction, है ना. It is very very useful when you make the direct indirect. We may utilize this chapter, this part of the sentence, this kind of sentences. See, in this sentence what happens, it's nothing, it's not difficult actually. Here when we are making the comprehensive structure, we have to use helping verb just after the WH family member, okay. But when we are making the conjunction, we have to use subject just after the WH member, okay. See here, WH plus subject plus must have plus V3 plus object. यहाँ पे आप कॉमा डालिए, है ना, क्योंकि कंजंक्शन है, ये कनेक्ट करेगा. ये WH मेंबर जो है यहाँ और यहाँ दोनों जगह कनेक्ट करेगा, है ना. मैं आपको इसको एग्जांपल से आपको अभी क्लियर करूंगी. और जो सेकंड पार्ट होगा, कंजंक्शन मींस कनेक्ट करना, एंड जंक्शन माने सिरे, है ना. सो दिस पार्ट एंड दैट पार्ट बोथ विल बी कनेक्टेड बाय दिस WH प्लस सब्जेक्ट मेंबर, है ना. तो हियर हम यहाँ पे दोबारा से सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट को दोबारा यूटिलाइज नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट विल स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ओके. तो हमारा ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा. कैसे होगा ये मैं आपको अभी करके बताती हूँ ना. तो लेट्स डिस्कस द वन ऑफ द सेंटेंस. आपको उस प्रतियोगिता में सफलता हेतु कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है. आपको उस प्रतियोगिता में सफलता हेतु कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी. अब चाहिए थी और जरूर चाहिए थी, इसमें डिफरेंस को थोड़ा समझ लीजिए. अगर इसी सेंटेंस में मैं बोल दूं आपको उस प्रतियोगिता में सफलता हेतु मेहनत करनी चाहिए थी, मतलब एक जनरल सेंस में, तो आप कैसे बनाते हैं, यू शुड हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन. लेकिन अब आप बोल रहे हो कि आपको प्रेशराइज कर रहे हो कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, है ना. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाउंडेशन आ रही है, थोड़ा कंपल्शन आ रहा है, तो तब आप मस्ट हैव का यूज कीजिए. अब मैंने यहाँ पर देखिए सेंटेंस में डाला है कि आपको उस प्रतियोगिता में सफलता हेतु कड़ी मेहनत करनी चाहिए. तो अब जनरल काम के लिए कड़ी थोड़ी करते हैं. अब जैसे नहाना है, आपको नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ, जनरल शुड हो गया ना. लेकिन अब इसी में बोले अरे आपको कोरोना से या गंदगी से या बैक्टीरियल इफेक्ट से या वायरल इफेक्ट से बचने के लिए जरूर नहाना चाहिए. यू मस्ट हैव टेकन बाथ अगर हम इस चैप्टर में जाएं, और जनरल जाएं तो यू मस्ट टेक बाथ, है ना. तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि आप जनरल चीजों को जब डिस्कस करते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं, और जब आप उसमें थोड़ा सा बाउंडेशन, थोड़ा सा कंपल्शन ले आते हैं, कोई कंपल्सरी चीज कर देते हैं, तब आप मस्ट का यूज करिए. और इसी तरह इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू ऑट टू. तो जब उसमें कोई मोरल ड्यूटी आ गई, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को लेकर गए किले पे और आप उसको वहीं छोड़कर आ गए, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप नहीं बोलेंगे कि आपको अपने दोस्त को किले पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो थोड़ा सा आपकी मोरल ड्यूटी से अगेंस्ट जाता है ना. तो यू ऑट नॉट टू लीव योर फ्रेंड ऑन फोर्ट, है ना. तो थोड़ा सा इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हुए अगर आप यूज करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा, है ना. तो हम डिस्कस करते हैं इसी को, जिसपे हम थे वहीं पर पहुंचते हैं. तो आपको उस प्रतियोगिता में सफलता हेतु कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी. यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड
टू गेट सक्सेस, देखिए मैंने टू गेट सक्सेस लिखा है, सक्सेस यहाँ पे नाउन है इसलिए मेरे को गेट लगाना पड़ा। अगर आप सक्सीड यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, तो आपको गेट लगाने की जरूरत नहीं है। टू सक्सीड इन दैट कॉम्पिटिशन, है ना, सक्सीड वर्ब है और सक्सेस नाउन है। तो जब वर्ब होता है तो सफलता पाना पूरा उसमें चला जाता है, लेकिन जब सिर्फ हम उसको नाउन ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम तो उसका मीनिंग सिर्फ सफलता हुआ, है ना, तब आपको उसके लिए गेट की यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने सक्सेस लिखा है ना, इसलिए मैंने गेट का यूज किया। तो ये थोड़ा सा नाउन और वर्ब के ऊपर भी कुछ डिस्कशन टाइम टू टाइम देखिए कितना मिलता है, करेंगे। यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, V3 का यूज करना है, आपको पता है हम V3 लेसन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, मैंने लिखा ना उस प्रतियोगिता, तो उस प्रतियोगिता है तो दैट है, जनरली सेंटेंस पास्ट का है तो उसका यूज कर रहे हो, अगर प्रेजेंट का होता तो हम दिस का यूज करते हैं ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नाउ वील डिस्कस द नेगेटिव वन। अब इसमें हम नेगेटिव को देखिए, इसी तरह आप हिंदी में बनाते जाएंगे तो ये बनता जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव। अब इसी को देखिए, यू मस्ट नॉट हैव worked hard to succeed in that competition। देखिए मैंने टू गेट सक्सेस की जगह सक्सीड कर दिया ना, सक्सीड V1 है, अगर इसका भी V2 बनाएंगे तो सक्सीडेड हो जाएगा। इसकी हमें वी डोंट हैव सक्सीडेड, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है इसलिए मैं सक्सीड का यूज ही कर रही हूँ। टू सक्सीड इन दैट कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये आपका बना नेगेटिव वन। नाउ वील डिस्कस द कन्फर्मेटरी। मस्ट यू हैव, देखिए स्ट्रक्चर में आप डालते जाइए, 4-5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, दैट विल बी इजी टू टॉक, है ना। तो मस्ट यू हैव डिस्कस्ड, oh sorry, must you have worked hard to get success in that competition? Okay, now we'll discuss the confirmatory negative interrogative, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी में देखिए स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे ही आप डालेंगे, बिल्कुल ठीक बनेगा। must you not have worked hard to get success in that competition? Okay, if you discuss the WH family member तो कैसे होगा, why must you have worked hard to get success in that competition? और कॉन्फर्मेटरी अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे होगा, why must you not have worked hard to get success in that competition? And now the conjunction one, है ना, कंजंक्शन वन, कंजंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया ना सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के WH फैमिली मेंबर के साथ आपको सब्जेक्ट को कनेक्ट करना होगा, है ना। तो हम कैसे करेंगे, वेयर, देखिए मैं WH फैमिली का वेयर वर्ड यूज कर रही हूँ ना, हम वाई का भी यूज कर सकते हैं, जिससे भी आपका सेंटेंस बने अच्छे से उसको आप यूज कर सकते हैं ना। तो वेयर यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, WH फैमिली का मेंबर मैंने वेयर लिया, अब मैं देखिए सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही हूँ, है ना। वेयर यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब से हम दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं ना। वेयर यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस वॉज योर अब वेयर को देखिए, ये वेयर है ना,
तो वेयर क्या है, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, वेयर हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए। तो जब आप प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बैलेंस भी किससे करेंगे, प्लेस से। अगर मैं यहाँ पे व्हेन का यूज करती, मान लो मैंने व्हेन लगाया, व्हेन यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, तो हमको इधर किससे यूज करना पड़ेगा, टाइम के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। अगर मैं वेयर लगा रही हूँ, जैसे जहां आपको बहुत हार्डवर्क करना चाहिए था, वो आपका स्कूल था, है ना, या वो आपका स्कूल से या प्लेस से रिलेटेड को आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे व्हेन का यूज करते हैं ना, व्हेन, WHEN, व्हेन यू, तब इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, जब। व्हेन यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस वॉज योर चाइल्डहुड। अब देखिए मैंने टाइम से बैलेंस किया ना, तो कहने का मतलब वो जहां तो हमने नहीं डिस्कस किया, अभी हम व्हेन कर रहे हैं, जब आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी सक्सेस प्राप्त करने के लिए, वो आपका चाइल्डहुड था, वो आपके बचपन का समय था। तो अगर आप व्हेन का यूज कर रहे हैं, यानी इफ यू आर डिस्कसिंग द एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको कंजंक्शन में कॉमा के बाद जो सेकंड क्लॉज हम बनाएंगे उसको टाइम के साथ बैलेंस करना है। अगर हम यूज करते हैं वेयर यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, it was your school or it was your any place can be added there, तो उस प्लेस को एडिट कर देते। अगर आप why का यूज करते हैं तो वहां पे बिकॉज यानी क्योंकि के साथ आप कनेक्ट करते तो आपका बन जाता है ना। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी अब मैं आपको सारे स्ट्रक्चर एक बार करके एक साथ दिखाती हूँ। देखिए, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, यू मस्टंट या मस्ट नॉट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सीड इन दैट कॉम्पिटिशन। अगर आप सक्सीड लिख रहे हैं तो सिर्फ सक्सीड ही यूज करिए, इफ यू आर यूजिंग सक्सेस तो आप गेट का यूज करिए ना, गेट सक्सेस। मस्ट यू हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, मस्ट यू नॉट हैव, सी द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, है ना, सी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, दैट विल मेक योर सेंटेंस करेक्ट, है ना। मस्ट यू नॉट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, और whenever you are making the sentences out of these structures, आपका many time it happens, तो बच्चे जो है वो जो उसका सेंस होता है ना वो नहीं लेके आते। जब आप बोल रहे हैं तो आप ऐसे ही बोलते हैं मस्ट यू नॉट हैव वर्कड हार्ड, नो। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कॉन्फर्मेटरीज किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। ये स्ट्रक्चर सब किससे शुरू हुए, क्या से। आप पहले वाले चैप्टर्स देखेंगे ना मेरे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या से शुरू होते हैं। तो अब क्या आपको कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए था, तो मस्ट यू तो आपका जो बोलने का जो सेंस है, जो आपका एक्सप्रेशन है, वो भी उसी सेंस में आना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू कन्वे योर मैसेज थ्रू योर सेंटेंस टू द अदर वन वेरी क्लियरली। ओके, सो इधर देखिए एक बार, मस्ट यू नॉट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, तो इसका जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, मस्ट यू नॉट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन। इधर देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाई मस्ट यू हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, व्हाई लगाया मैंने, व्हाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों। क्यों आपको उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए था, क्यों आपको उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए था। व्हाई मस्ट यू नॉट हैव वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस इन दैट कॉम्पिटिशन, सी दीज आर द इंटरोगेटिव्स, सो आई मस्ट यूज द क्वेश्चन मार्क ओवर देयर, है ना, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना चाहिए। ठीक है, नाउ द कंजंक्शन, इन कंजंक्शन सेक्शन आल्सो वी हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हियर आई हैव डिस्कस्ड ओनली वन, नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेगेटिव में डिस्कस करके दिखाऊंगी, है ना। तो अब मैं यहाँ पर जो यूज करूंगी वो होगा नेगेटिव पॉजिटिव कंजंक्शन। एंड इन पॉजिटिव यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग WH मेंबर इन कंजंक्शन देयर शुड बी सब्जेक्ट। किसका यूज होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए ना। तो ये आप हमेशा याद रखें कि व्हेन you must have worked hard to get success in that competition, जब आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था तो वो आपका बचपन का समय था, was your childhood। ये वाला जो क्लॉज है, ये क्लॉज जो है यानी ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यहाँ पे when है ना, इट इज ए टाइम ऑफ एडवर्ब, when को हम टाइम ऑफ एडवर्ब मानते हैं, तो टाइम को टाइम से ही बैलेंस करेंगे तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट
In next chapter we will discuss ought to, and after ought to we will discuss the exercises related to all three chapters, है ना, जिसमें आपको should have की भी मिलेंगी, must have की भी मिलेंगी और ought to have की भी होगी, है ना। और उसमें क्या होगा, whenever you are using the three exercise together, एक साथ करेंगे तो आप you will be able to identify कि कहाँ पे मैं must have लगाऊं, कहाँ पे मैं should have लगाऊं, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छा होगा। ओके, so revise this. Thank you so much. Bye.